हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस। तो हम इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको दो इम्पॉर्टेंट बात कि हम इस सेशन को दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हर बार जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसको एक सेपरेटली आपके साथ शेयर कर देंगे, पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली नहीं बट एक रिवाइज नोटिफिकेशन। तो आपका कोई भी अटैम्प्ट है तो आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है। न्यूज़ अपडेट्स या जो भी चेंजेस हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, दोनों लैंग्वेज में शेयर करेंगे, प्रेफरेबली इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ताकि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं अगर उनको हिंदी कंफर्टेबल है अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश, दे आर ओके विद दिस। सो विद टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस about the financial accounting syllabus as per the UPSC Civil Services notification, and we are going to discuss this syllabus in both the languages English and Hindi, so that all the aspirants get a maximum benefit out of it. And you shouldn't worried about any changes if you are appearing in any kind of attempt. When and with effect any news or a notification came into being, it's our responsibility to update you with the revised notification. So if there is any latest notification come from the side of UPSC, we will bring up before you, so you shouldn't worried whether I will be updated or not. Okay, so you just keep focusing and keep working hard. And I always say, please stay least inactive or try to avoid the social media and try to focus only on revision, work hard, understanding, okay? Because out of 100% we can say 95 to 98% are spending in time in collecting material only, or wasting their time in a social media, and you should avoid it at first tense, okay? तो आज के सेशन में फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस एंड रीड अलाउड अबाउट द सिलेबस, एंड देन वी विल डिस्कस ईच पॉइंट इन डिटेल, ओके। तो पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो नोटिफिकेशन के हिसाब से सिलेबस मेंशन है उसको सिर्फ रीड करेंगे और फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर? ओके। फर्स्ट, अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, impact of behavioral science. Accounting standards include accounting for depreciation, inventories, research and development cost, long-term construction contract, revenue recognition, fixed asset, contingencies, foreign exchange transaction, investment and government grants, cash flow statement, earning per share. Next, accounting for share capital transaction including bonus share, right shares, employer stock option, buyback of securities, preparation and presentation of company final accounts, amalgamation, absorption and reconstruction of companies. So this is what is mentioned in your syllabus as per the UPSC notification. ये आपकी syllabus में straight away ये verdicts mention किए हुए हैं कि ये आइटम्स या ये टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस का, ठीक है। तो अब हम इंडिविजुअली इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर? गिव अ मोमेंट प्लीज। ओके, सो लेट्स डिस्कस ईच पॉइंट इन डिटेल, एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया क्या है, अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर थ्योरेटिकल पॉइंट, अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल information system, ठीक है। So it's completely a theoretical, it's a brief about informations and that you have to go through it, ठीक है। It's not required a much expertise that how accounting plays a very vital role in the financial information. It's completely theoretical, and if we discuss from the exam viewpoint, very rare questions came from here. तो अगर हम एग्जाम के व्यू पॉइंट में देखें तो अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कम्प्लीटली थियोरेटिकल पोर्शन है और बहुत ही लिटिल बिट इससे क्वेश्चन रेज्ड होते हैं और नेग्लिजिबल क्वेश्चन इससे रेज्ड होते हैं। सेकेंड जो पॉइंट हम डेडिकेट करेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, सो व्हाट इज ऑल अबाउट इज इट्स अबाउट दी कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी कंप्लीटली आपका थियोरेटिकल टॉपिक है और बहुत ही रेयर एग्जाम में पूछा गया है। सो इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द थियोरेटिकल टॉपिक एज पर दी पास्ट पेपर्स इफ यू कैन रिफर, एंड इट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी लिमिटेड और वेरी नेग्लिजिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन, ओके। नेक्स्ट,
थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस इट्स इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, ये इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी रिलेवेंट है, अगर हम पेपर्स को देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं इससे। अब इसमें पहले हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर जो स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के, जो बेसिक क्वेरीज हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट, व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द पार्ट ऑफ सिलेबस, so did we require to complete all the AS or we are not required to complete all the AS, so what all the AS we have to do it, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डायलेमास हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वॉट एवर इज मेंशन इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टिक टू इट एंड यू हैव टू कंप्लीट विद दैट पर्टिकुलर सिलेबस, यू डोंट नीड टू बी एन doing a PhD or an expertise in accounting standard or sitting into the panel of the accounting standard, only you have to stick to your syllabus. Okay, so what are those accounting standard, the part of your syllabus are, the first one is your depreciation, second is your inventories, research and development cost, okay, next is your long term construction contract, okay, next is your revenue recognition, okay, and next will be your fixed assets, okay, and the other next will be your contingencies. Please give a moment, let me the screen has been, one second. Okay, accounting as a financial information, impact of behavioral and accounting standard we are doing. Okay, contingencies, then after contingencies we will discuss the foreign exchange transaction, okay, foreign exchange transactions, next investments, okay, next one will be your government grants, I'm writing shortcut, okay, next will be your cash flow statement, don't worry I'll discuss it, okay, and the other one is earning per share. So these are the part of your syllabus accounting standard, okay, तो ये आपके syllabus का part है, इतने ही syllabus का part है, तो आपको सारे accounting standards पे expertise नहीं करनी है, ठीक है। So depreciation will be the first part of your accounting standard, inventories, research and development cost, long term construction contract, revenue recognition, fixed assets, contingencies, foreign exchange transactions, investment, government grants, cash flow statement and earning per share. So cash flow statement is also the part of your financial management. So one should do with accounting standard, because in your exam mostly when you see it already linked with your accounting standard, so it is advisable to do cash flow statement along with your accounting standard, not as a part of an FM. Okay, most important query which has been raised by numerous students from time to time, ma'am, does only this much accounting standard will be the part of your preparation? Yes, only this much. You don't need to be an expertise in, or you don't want to be a panel of accounting standard, you have to just prepare as per your syllabus. Next question, what is relation with India? Should we do accounting standard or AS? It's a very important questions which came into in mind. You should do AS, we have to stick with the syllabus. UPSC is playing trick. We already approached them personally and they are not revising the course, even you have seen in the taxation also. So whatever they are given, you have to comply, because not all the industries or companies has to comply with the AS. There is strict, some clauses that one has to go comply with the AS and other few has to comply with the Ind AS. So you have to do a strategically accounting standard, but you have to simultaneously cover on the differences. Okay, and you must have a basic brief idea. Getting? Okay. So these are the two most important questions. तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट के पास आते हैं, एक तो हमने कि मैम केवल इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं, यस केवल इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने हैं, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको अपने सिलेबस पे स्टिक रहना है और उसको ही कवर अप करना है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किए, डेप्रीशिएशन,
इन्वेंट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, कंटिंजेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अर्निंग पर शेयर। सो इतना ही आपको जो है कवर अप करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों का पार्ट है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही पार्ट लिया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, और हम कोर्स में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कनेक्ट करके करेंगे। क्लियर? इवन इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोबेबली आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक होकर ही रेस्ड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैम केवल इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे? यस, केवल इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट है, तो जो सिलेबस का पार्ट है आपको वहीं पर स्टिक रहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम क्या इंड एएस आएगा? फिर वही बात कि जो आपका सिलेबस है आपको वहीं तक स्टिक रहना है, तो आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन है, ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थॉरोली कवर अप करना है, ठीक है, और इंड एएस से डिफरेंस को समझना है, क्योंकि जो एएस है या इंड एएस है वो हर एक के ऊपर अभी होलिस्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर एप्लीकेबल है सब्जेक्ट टू सम सर्टेन कंडीशंस एंड टर्म्स। तो इसीलिए आपने करना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर अप करना है, और न्यूज़ और अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंसेस पे कमान रखने हैं। क्लियर? आई थिंक आपको कोई और डाउट नहीं रहना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के। फिर हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट आपको सिलेबस का पार्ट है शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। यस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर सिलेबस। सो इट इंक्लूड्स your basics obviously, then bonus, okay, bonus issue, bonus shares, right shares, okay, employee stock option, ठीक है, and buyback, ठीक है। सो दिस मच ओनली द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो आपके शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन ये भी काफ़ी वाइटल है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट के आपने सुने होंगे, ठीक है, जहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट होती है, पार्शियल इश्यूज़ हैं, कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन एडवांस है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं। प्रोबेबली जनरल एंट्रीज या बैलेंस शीट पूछा जाता है आपसे, तो हमें बेसिक पे आपको ध्यान देना है। बोनस जो आपके सिलेबस का स्पेसिफिक पार्ट है, राइट शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड बायबैक, ये आपका मैंडेटरी है, आपको इतना एज पर सिलेबस आपको कवर अप करना ही करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, किसका? कंपनी का फाइनल अकाउंट। इसको कैसे प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जब फाइनल अकाउंट्स की बात आती है तो इसमें डिबेंचर भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आ जाएगा। तो कई बार आपके एग्जाम में जब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर आते हैं तो आप ऐसे बोलते हो यार ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये सिलेबस का पार्ट है। गेटिंग? सो आपने यू हैव टू कमांड प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स ऑल्सो। सो नॉट ओनली इन वेरी डेप्थ, बस एक बेसिक आइडियाज रखने हैं, बहुत ही बेसिक्स। सो वॉट यू हैव टू डू इट्स इन केस ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर द and present it. You should know the presentation also. And sometime when it comes to your syllabus, that question may pop up with your preference shares, or it may come up regarding with your debentures. So you may surprise that it's not a part of syllabus specifically under the share capital transaction, but it will fall under the final accounts. So in final accounts, you have to be very well aware about each and every transaction, the basic overview, not very depth of the debenture or very depth of the preference share, but a basic should be there. Okay, so that means you should aware about those information. So company final accounts, it also came sometimes in examination, and sometimes you have to like just prepare some journal entries and all, that's it. So it is a part of your syllabus, and I'll recommend to check everything in detail and command holistically. You should refer the at least 3 to 4 year previous year paper, that is sufficient. Moving ahead, last point जो आपके syllabus का है वो है amalgamation, absorption and reconstruction.
ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस इज amalgamation, absorption and reconstruction. In this we take these together, amalgamation and absorption, and reconstruction we take separately, in which we include the external and internal reconstruction, both kind of reconstruction. So we are going to discuss each areas of this. ठीक है। सो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है आपके सिलेबस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो है एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। एमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन को जनरली आप एक साथ पढ़ते हैं और हम एक साथ कवर अप करेंगे, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल इंटरनल उनको हम सेपरेटली कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यही केवल सिलेबस है, आपको और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना सिलेबस है उतना पढ़ना है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो हर एक स्टूडेंट के अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज हैं। आप उसको जब शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली टीम आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, कई बार क्या होता है आप कोर्स कवर अप कर लेते हो, रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो रिवीजन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नहीं तो सारी चीज़ें नया लगेगा। ठीक है, सो हम हर पर्टिकुलर चैप्टर में एक नई स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली सब्जेक्ट में नई स्ट्रैटेजी करेंगे, ताकि आप वीडियो सेशंस के थ्रू ही 90% एटलीस्ट कमांड करो और 10% जो आपकी प्रैक्टिस होगी। कुछ जो न्यूमेरिकल की बात थी, कुछ लिमिटेड न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, और ये करना तो मैंडेटरी होगा। उसके अलावा हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, सारे सब्जेक्ट न्यूमेरिकल के, वो आप तभी करेंगे जब आपके पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम हो, एक्स्ट्रा टाइम हो, और आपको लगता हो कि आपको कर लेना चाहिए, तो आप वीडियो के थ्रू क्विकली कवर अप करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एंड स्मार्टली काम करना है, कम समय पे अच्छे से कवर अप करना है। ऑप्शनल को खूब ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप देखेंगे ऑन एन एवरेज आप सेम होते हो। जो आपने विन करनी है रेस वो होती है मेंस की, आपके आंसर्स की, आपकी रिटर्न स्ट्रैटेजी की। तो जब आप ऑप्शनल में टाइम सेव कर लोगे तो उतना टाइम आप अपने जीएस और अदर पेपर को दे पाओगे। ठीक है, सो आई होप यू एग्री विथ माई स्ट्रैटेजी। सो वी विल वर्क टुगेदर। ठीक है, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 काम करना है, एक तो सोशल मीडिया अवॉइड करना है, दूसरा हार्ड वर्क करना है, दैट्स इट, रेस्ट वी आर विथ यू। ठीक है, सो कीप वर्किंग हार्ड। कोई डाउट रहता है सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग में, प्लीज डू आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड मोर डिटेल अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।